نیوز بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں گرمی کی شدت برقرار۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں 31 اگست تک چھٹیاں بڑھا دی۔ اب اسکول 1 ستمبر سے دوبارہ کھلیں گے۔ پنجاب بھر میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں 2 ہفتے کی چھٹیاں مزید بڑھا دی ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ اب تعلیمی ادارے 15 اگست کی بجائے 31 اگست تک بند رہیں گے۔ اسکول دوبارہ سے 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب میں گرمی کی شدت برقرار۔ تعلیمی ادارے 15 اگست کے بجائے 31 اگست تک بند رہیں گے۔ اسکول دوبارہ سے 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ مہنگی چینی کی مٹھاس بھی پھیکی لگنے لگی۔ ملتان غلہ منڈی میں چینی کا بحران مزید سنگین ہو گیا۔ ہول سیل سطح پر مصنوعی قلت کے باعث چینی 5 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ ہول سیل سطح پر مصنوعی قلت کے باعث چینی 5 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مہنگی چینی کی مٹھاس بھی پھیکی لگنے لگی۔ ملتان غلہ منڈی میں چینی کا بحران مزید سنگین ہو گیا۔ ملتان غلہ منڈی میں چینی مزید مہنگی ہو گئی۔ ہول سیل سطح پر چینی کی قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ منڈی میں چینی 173 روپے سے مہنگی ہو کر 178 روپے فی کلو ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں چینی کا ہول سیل سرکاری ریٹ 168 روپے فی کلو مقرر ہے، مگر اس ریٹ پر کوئی دکاندار بھی چینی فروخت نہیں کر رہا۔ چینی بہت مہنگی ہو رہی ہے جی۔ انسان کا جو ہے نا 1 کلو جب بڑی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اور مہنگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کے بجائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ غریب آدمی پہلے ہی مہنگائی سے تنگ ہے، خرچے پورے ہی نہیں ہوتے، اوپر سے چینی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ چینی تو بہت مہنگی ہے۔ ابھی میں چینی لینے آیا ہوں، بولے چینی مہنگی ہے۔ چینی 5 کلو 900 کی بتا رہے ہیں، 5 کلو 900 کی بتا رہے ہیں چینی۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے شوگر مافیا کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں چینی کی قلت۔ میاں والی میں شہری پیسے ہاتھوں میں لیے چینی کی تلاش میں دربدر۔ دوسری جانب انتظامیہ بھی شوگر مافیا کے خلاف متحرک۔ لیاقت پور میں چینی کے گوداموں پر چھاپے، سٹاک کیے 4650 تھیلے پکڑ لیے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، جنوبی پنجاب میں چینی کی قلت۔ میاں والی میں شہری پیسے ہاتھوں میں لیے چینی کی تلاش میں دربدر۔ دوسری جانب انتظامیہ بھی شوگر مافیا کے خلاف متحرک۔ لیاقت پور میں چینی کے گوداموں پر چھاپے، سٹاک کیے 4650 تھیلے پکڑ لیے۔ میاں والی کی مارکیٹ سے چینی نایاب ہو گئی۔ چینی کی عدم دستیابی سے دکاندار اور شہری دونوں پریشان۔ شہری کہتے ہیں پیسے ہاتھوں میں لیے چینی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ پوری مارکیٹ میں کہیں چینی دستیاب نہیں۔ دوسری جانب چینی ڈیلر جمال خان کا کہنا تھا کہ مل مالکان چینی نہیں دے رہے۔ صدر انجمن تاجران مبین شیروانی کا کہنا تھا کہ حکومت مل مالکان کو نکیل ڈالنے میں ناکام رہی ہے۔ فوری اقدامات نہ کیے گئے تو چینی کا بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ چینی صبح سے ڈھونڈ رہے ہیں، چینی ملنے کو تیار نہیں ہے۔ جس دکاندار کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چینی دستیاب نہیں ہے۔ چینی صبح سے ڈھونڈ رہے ہیں، کسی نے 1 کلو چینی دی نہیں ہے، پیسے ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں لیکن مال نہیں ہے۔ گورنمنٹ ریٹ دیا تھا ایکس مل کو 165 روپے، اس پہ ہمیں دستیاب کرنی تھی۔ وہ کچھ دن تو دستیاب ملنے کی، لیکن اس کے بعد مل کے مسائل آنے لگے، آپ نے یہ ڈاکومنٹس پورا کرنے، آپ نے فلاں ڈاکومنٹس پورا کرنے۔ ہم دکانداروں نے جب وہ ڈاکومنٹس پورے کیے۔ ادھر لیاقت پور انتظامیہ شوگر مافیا کے خلاف متحرک۔ ایسی لیاقت پور ابراہیم میلادی کھر کے چینی کے گوداموں پر چھاپے، 3 گوداموں میں سٹاک کیے گئے چینی کے 4650 تھیلے پکڑے گئے، گودام سیل کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ ڈیلر مقررہ کردہ نرخوں پر چینی فروخت کرنے سے انکاری تھے۔ سرگودا کے پرچون بازاروں میں چینی نایاب، عوام رول گئے۔ شہری شکر اور گڑ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی کی سپلائی بند ہے جبکہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ چینی بحران نے سرگودا کے عوام کو پریشان کر دیا۔ ضلعی حکومت کی شوگر مافیا کے خلاف کارروائیاں بے سود۔ شہر کی اکثر دکانوں پر چینی دستیاب ہی نہیں، جہاں دستیاب ہے وہاں قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ چینی کی عدم دستیابی پر شہری شکر اور گڑ کا استعمال کرنے لگے۔ شدید بحران ہے چینی کا، چینی میسر نہیں ہے، مل نہیں رہی ہے، تو اب گھر میں چینی کی ضرورت بھی ہے، بچوں کے لیے میٹھا بھی بنانا ہے، چائے وغیرہ بھی بنانی ہے، تو پھر میں نے چینی کی بجائے گڑ کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بازار میں چینی کہیں نہیں مل رہی، اگر ملتی ہے تو بہت مہنگی ہے۔ حکومت فوری طور پر چینی کی سپلائی بحال کرے تاکہ مہنگائی کے ستائے عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ چینی تو ہے نہیں کیونکہ بازاروں میں مل نہیں رہی، گلیوں دکانوں پہ بالکل بھی مل نہیں رہی ہے، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے جس سے دھکے بھی ملتے ہیں،
लोगों को नुकसान भी हो रहे हैं। लेकिन अब ये है कि शक्कर और गुड़ लेने आए हैं, जिससे ये होगा कि चलो चाय तो पी सकते हैं। चीनी बहरान ने जहां आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है, वहीं हुकूमती दावों पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान रूही, सरगोदा। बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 3 माह के लिए ₹1.89 फी यूनिट सस्ती कर दी। हर महीने ₹1.89 फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बिलों में कमी होगी। सारिफिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला विफाक को भेज दिया। आपको अपडेट करें, महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। ₹1.89 फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। कीमतों में कमी अगस्त अक्टूबर 3 माह के लिए की गई है। सारिफिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। महंगाई के मारे अवाम दाल, मूंग और सफेद चने खाकर गुजारा करें। रहीम यार खान में दोनों अजनास की कीमत कम हो गई। सफेद चना 60 जबकि दाल मूंग 50 रुपए फी किलो सस्ती हुई। दुकानदारों के मुताबिक तलब में कमी और सप्लाई में इजाफे की वजह से सफेद चना और दाल मूंग सस्ती की गई। महंगाई से परेशान आवाम के लिए खुशाइंद खबर। रहीम यार खान में सफेद चना और दाल मूंग की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई, जिसे शहरियों ने इंतजामिया का बरवक्त और मस्बत कदम करार दिया है। सफेद चना की फी किलो कीमत 60 रुपए कमी के बाद 280 रुपए हो गई, जबकि दाल मूंग 50 रुपए सस्ती होने से 370 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। करियाना फरोशों के मुताबिक वो इंतजामिया की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। यही वजह है कि दुकानों पर चीनी भी सरकारी निर्ख 173 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सप्लाई में बेहतरी और डिमांड में कमी की बदौलत दालों की कीमतें नीचे आ गईं। ताजरों के साथ मिलकर एक अच्छा इकदाम किया और चीनी अब जो है वो 173 पे बाआसानी अवेलेबल है। डिमांड के मुताबिक चीनी मिल रही है और आगे कस्टमर को उसके लिए काफ़ी आसानियां पैदा हो गई हैं। शहरियों ने दालों की कीमतों में कमी पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे इकदामात महंगाई के मारे आवाम के लिए रिलीफ का बायस हैं। दालें सस्ती हो गई हैं, पहले दालें बहुत महंगी थी, हम ले नहीं सकते थे। अब जो है सफ़ेद चनों की भी कीमत कम की है, हम बहुत खुश हैं। पहले दालें बहुत महंगी थी, चने बहुत महंगे थे। पहले हम जो 1 किलो लेते थे हम 1.5 किलो ले रहे हैं। चने भी ऐसे ही है, चीनी के रेटों में भी यही है, तो हम बहुत खुश हैं। शहरियों का कहना था कि सफेद चना और दाल मूंग सस्ती हुई तो घर का चूल्हा जलना शुरू हो गया। अब दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी कमी की जाए ताकि वो हुकूमती रिलीफ से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रूही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत। ज़िला इंतजामिया और पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटे में 129 अफगानियों को मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया है। मुल्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ जिले इंतजामिया और पुलिस का क्रैकडाउन जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 129 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया गया। इन अफराद को थाना गुलगश्त, थाना बीजेडीयू, थाना मखदूम रशीद और थाना पुरानी कोतवाली की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्तान थाना गुलगश्त और बीजेडीयू की हदूद से 13, मखदूम रशीद से 49, जबकि थाना पुरानी कोतवाली के इलाकों से 54 अफगानियों को हिरासत में लिया गया। ये अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर लकड़ी के टाल, चाय के होटल और कालीन फरोशी जैसे कारोबार में मुलविस पाए गए। गिरफ्तार तमाम अफगानियों को इब्तदाई कार्रवाई के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉस्टल में मुंतकिल किया गया है, जहां से इनकी अफगानिस्तान वापसी के इंतजामात किए जा रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक शहर को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से पाक करने का अमल जारी है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ सरापा एहतजाज। असातिज़ा स्कूलों की निजकारी, जबकि एप्का मुलाजमीन लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीली से नाराज। शुरका के हाथों में प्लेकार्ड्स और एहतजाजी बैनर्स उठाए नारेबाजी। अहदेदारों का कहना था कि मुतालबात ना माने गए तो लाहौर की सड़कों पर एहतजाज होगा। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के तहत हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से पेंशन, लीव इनकैशमेंट, कवानीन और निजकारी के फैसले वापस लेने का मुतालबा। नायब सदर एप्का ताहिर अब्बास शाह का कहना था कि महंगाई के तनासब से तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफा और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फौरी मुस्तकिल किया जाए। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ा देंगे। उधर स्कूलों की निजकारी के खिलाफ लोधरा में असातिज़ा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की नारेबाजी, कहते हैं हुकूमत
हुकूमत पंजाब ने हर सरकारी इदारा ठेके पर देने का फैसला कर लिया है। हुकूमत मुआमरान कौम को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। सदर टीचर्स यूनियन लोधरा राव फारूक का कहना था कि स्कूल की निजकारी का फैसला वापस न लिया गया तो लाहौर की सड़कों पर एहतजाज होगा। दूसरी जानिब लीव इनकैशमेंट और दीगर मराहत के खात्मे पर भक्कर में भी उसातिज़ा का एहतजाज। पंजाब टीचर एसोसिएशन के अहदेदारान की क़यादत में उसातिज़ा ने गवर्नमेंट हाई स्कूल CTTM से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। जिला सदर PTU अताउल्लाह खैर का कहना था कि हुकूमत लीव इनकैशमेंट और दीगर वाजिबात बहाल करे। उसातिज़ा के मुतालबात तस्लीम न किए गए तो लाहौर में धरना देंगे। बहावलपुर में भी एपका मुलाजमीन हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। एपका और अगेगा की रैलियां और एहतजाजी धरना। शुरका के लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीली नामंजूर के नारे। सूबाई सदर एपका खालिद जावेद संघेड़ा कहते हैं हुकूमत को मुलाजमीन के खिलाफ बनाए गए कवानीन वापस लेने होंगे। जबकि खानेवाल में भी सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। एपका के अहदेदारान का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। जनूबी पंजाब के दरियाओं में पानी का उतार चढ़ाव जारी। दरिया चिनाब में मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। उधर मुजफ्फरगढ़ में दरिया सिंध ने आबादी का रुख कर लिया। दर्जनों देहात के ज़ेरियाब आने का खतरा। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर में मुख्तलिफ मकामात पर दरियाई कटाव में भी शिद्दत का रख। सैकड़ों एकड़ तैयार फसलें तबाह। सुपरबंदों की मुरम्मत न होने से मकीन परेशान। आला हुकाम से रिलीफ फ्राहम करने का मुतालिबा कर दिया। दरियाए चिनाब में मुजफ्फरगढ़ के मकाम रंगपुर में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दर्जनों देहात में सैकड़ों एकड़ तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। अमीरपुर, सरवाना, बहरामपुर, अरोड़पुर समेत दर्जनों मौजात में दरियाई कटाव भी शिद्दत इख्तियार कर गया। इंतजामिया की जानिब से बहरामपुर और रंगपुर में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए। मेडिकल, वेटरनरी और रेस्क्यू टीमें भी तैनात कर दी गईं। सुपर बंदों की मुरम्मत के इकदामात न होने से मकीन परेशान। हुकूमत से बंद बनाने और इमदाद की फराहमी का मुतालबा कर दिया। जबकि दरियाए सिंध में तुगयानी से तहसील अलीपुर में भी दरियाई कटाव बढ़ गया। सैदपुर, कंदाई, गबराराई में शदीद कटाव जारी। अहले इलाका का कहना है कि सुपर बंदों को नुकसान पहुंच रहा है। बंद टूटा तो शहरी इलाकों में भी दरिया का पानी दाखिल हो जाएगा। सुपर बंद की तामीर का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। दूसरी जानिब महकमा इनहार का मौकफ है कि सुपर बंद की मजबूती का काम जारी है। दरियाई सूरत हाल पर भी नजर है। उधर जिला मुजफ्फरगढ़ में दरियाए सिंध ने आबादी का रुख कर लिया। गबराराई, नबीपुर, लंगरवा, मिठन वाली को भी खतरा। खैरपुर, सादात में दरियाई कटाव से हिफाजती बंद आधे से ज्यादा दरिया की नजर हो गया। करीबी आबादियों की जानिब लंगरवा के मकाम पर हिफाजती बंद में दरारें पड़ गईं। रिहायशी शदीद परेशान। महकमा इनहार ने हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए। दूसरी जानिब रहीमियार खान के इलाके लियाकतपुर में पठान नाला नहर का बहाव गुंजाइश से ज्यादा हो गया। नहर के कमजोर पुश्ते टूटने का खतरा पैदा हो गया। नहर का पानी करीबी खेतों में दाखिल, फसलें तबाह हो गईं। हंगामी सूरत हाल के बावजूद महकमा इनहार का अमला ताहाल बेखबर है। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में एक बार फिर इजाफा। मुख्तलिफ हेडवर्क से नहरों में पानी का अखराज बढ़ा दिया गया। दरिया सतलुज की करीबी आबादियों और फसलें ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। नशेबी इलाकों में कटाव भी जारी है। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में एक बार फिर इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ हेडवर्क से नहरों में पानी का अखराज बढ़ा दिया गया। हेड सुलेमानकी से ईस्टर्न सादकिया कैनाल में 600, अपर पाकपतन कैनाल में 700 क्यूसेक इजाफी पानी छोड़ा जा रहा है। जबकि अपर बहावल कैनाल में 1300 और कायमपुर ब्रांच में 530 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद रवां साल पहली बार 32,133 क्यूसेक तक पहुँच गई। जबकि पानी का अखराज 23,070 क्यूसेक है। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 17,731 और अखराज 15,851 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। बहावल नगर में दरियाए सतलुज की करीबी आबादियों और फसलें ज़ेर-ए-आब आने का खतरा लाहक हो गया। चक भटियां, चक माड़ी, मियाँ साहब और दीगर मकामात पर जमीनी कटाव जारी है। दरियाए सतलुज में सूरत हाल फिलहाल नॉर्मल है, मगर सैलाबी सूरत हाल का खतरा मौजूद है। जनूबी पंजाब की इंतजामी मशीनरी शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अचानक बहावलपुर के अरासी रिकॉर्ड सेंटर सिटी पहुंच गए। सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया। उधर DIG एडमंड शोएब खुरब ने बहावल नगर खिदमत मर्कज में खुली कचहरी लगाई। दूसरी जानिब कमिश्नर सरगोदा ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तामीराती कामों का मुआयना किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रबानी का बहावलपुर का दौरा। अचानक अराजी रिकॉर्ड सेंटर सिटी पहुंच गए। सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया। सेंटर में आए शहरियों के मसाइल भी सुने। शहरियों का अराजी रिकॉर्ड सेंटर की सर्विस डिलीवरी बारे मिला जुला रद्द-ए-अमल। एक शहरी की वरासती इंतकाल न होने की शिकायत पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अमले की सरजनिश, मसला फौरी हल करने का हुक्म दे दिया।
उधर डीआईजी एडमिन शोएब खुरम का भावनगर का दौरा, खिदमत मरकज में खुली कचहरी भी लगाई, शहरियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और उनके मसाइल भी सुने। डीआईजी का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद आवाम को फौरी इंसाफ और रिलीफ फ्राहम करना है। दूसरी जानिब कमिश्नर सरगोदा जहांजेब अवान ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तामीराती काम का मुआयना किया। कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि अस्पताल का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल, अंदरूनी फिनिशिंग जारी है। कमिश्नर ने मरीजों से सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया, जिस पर मरीजों का अस्पताल के साफ सुथरे माहौल पर इजहार इत्मीनान किया। जबकि कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का दौरा जलालपुर पीरवाला, जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इंतजामिया से साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट, जलालपुर स्कूल अस्पताल बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर की अस्पताल में जारी तरक्याती कामों को 2 हफ्तों में मुकम्मल करने की डेडलाइन। शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी के लिए 8.2 मिलियन की लागत से 2 टर्बाइन्स की मुरम्मती की मंजूरी दी। मकामी इंतजामिया को गैर कानूनी वाटर कनेक्शन मुअत्तल करने का हुक्म भी दिया। कब से मिलकर स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का फैसला, कमिश्नर का कहना था कि यह पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा मॉडल स्कूल होगा। 6 माह में 2000 तलबा को स्कूल में जेर तालीम रखने का हदफ है। उधर एसएसपी कामरान मुमताज ने दुनियापुर थाना सिटी सदर और खिदमत मरकज का दौरा, कारकर्दगी का जायजा लिया। एसएसपी का सर्विस डिलीवरी पर इजहार इत्मीनान, शहरियों से फीडबैक भी लिया। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा ने रात गेट डीएचक्यू अस्पताल में सहूलियात, सफाई सुथराई का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और लवाहिकीन से तिब्बी सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। जबकि डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया और डीपीओ राय मोहम्मद अजमल ने पीपी 87 में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। इजलास में ट्रांसपोर्टेशन प्लान, पोलिंग स्कीम समेत दीगर इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि पोलिंग स्टेशन पर तमाम जरूरी इंतजामात और सहूलियात की फ्राहमी को बरवक्त यकीनी बनाया जाए। हसास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग स्कीम पर ब्रीफिंग दी। मियांवाली ज़िमनी इंतखाब, पीपी 87 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल, उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट अवेजा। आरओ ऑफिस में अवेजा लिस्ट के मुताबिक 3 खवातीन समेत 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में इनामुल्लाह खान न्याजी, जहांजेब न्याजी, जुबैर अहमद खान, सज्जाद अहमद मलिक, शाहिद मसूद खान शामिल। शहर बानो हुमैर न्याजी, तारिक इकबाल खान, आदिल अब्दुल्ला खान, आयशा खान, अली हैदर नूर खान, मोहम्मद इशफाक सैफी, मोहम्मद अयाज खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अयाज खान न्याजी, मोहम्मद खालिद मसूद खान, मोहम्मद जुबैर खान, मोहम्मद सरदार बहादुर खान, मोहम्मद तैयब और मिंजा फातिमा का नाम भी शामिल। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 8 से 11 अगस्त तक मुकम्मल होगा। उम्मीदवार 12 से 16 अगस्त तक अपीलें दाखिल करा सकेंगे, जबकि 22 अगस्त को अपीलों पर हतमी फैसला दिया जाएगा। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा की जाएगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 26 अगस्त को अलाट किए जाएंगे, जबकि इंतखाबी दंगल 18 सितंबर को सजेगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। जश्न आजादी के स्टॉल्स पर बाजों की भरमार। शहरी कहते हैं सूती आलूदगी और शोर पैदा करके जश्न मनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इंतजामिया बाजों पर पाबंदी लगाए। मुल्तान में जश्न आजादी के स्टॉल्स पर मुख्तलिफ किस्म के बाजे बच्चों की तवज्जो का मरकज। तरह तरह के बाजे सूती आलूदगी और समा खराशी का सबब बनते हैं। इस्लामाबाद जिलाई इंतजामिया ने बाजों पर पाबंदी लगा दी। शहरी कहते हैं बाजों की वजह से सूती आलूदगी फैलती है, इन बाजों पर पाबंदी लगानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लगानी चाहिए, फौरन लगानी चाहिए। पंजाब में पाबंदी, इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि बाजे बजाने से आज़ादी नहीं सेलिब्रेट की जा सकती। सेलिब्रेट आज़ादी की जाती है दुआओं से की जाती है। आप अच्छे काम करें, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं बाजे की जगह पे। स्टॉल मालकान का कहना है कि योम आज़ादी के मौके पर बाजों की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए फरोख्त करते हैं। अगर पाबंदी लग जाएगी तो फरोख्त नहीं करेंगे। बाजे की डिमांड जो है 14 अगस्त पे बढ़ जाती है, इतनी होती है कि डिमांड पूरी नहीं होती। तो अगर गवर्नमेंट इस पे पाबंदी लगाती है तो हम नहीं बेचेंगे। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुल्तान शहर में भी बाजों पर पाबंदी लगाई जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ फराज रमजान, रोही। 14 अगस्त पर अमन व अमान के क्याम के लिए जिला पुलिस ने इकदाम जारी। दोदरा के वाहिद तफरीगा चिल्ड्रन पार्क में आवाम के रश और फैमिलीज की हिफाजत के लिए पुलिस नफरी तैनात। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है लोधरा शहर की, जहां से शाहरात को, दुकानों को, बिल्डिंगों को सजाया जा रहा है। वहीं डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने इसी जश्न आज़ादी के हवाले से शहर की वाहिद तफरीका चिल्ड्रन पार्क में लोधरा पुलिस के 5 कांस्टेबल्स की यहाँ ड्यूटी लगाई है, जिनका इंचार्ज जो हेड कांस्टेबल स्टाफ का अफसर है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है हेड कांस्टेबल मोहम्मद घल्लू। बताइएगा सर, क्या फराइज हैं आपके और क्या अहकाम हैं? जी, जो खवातीन को छेड़ेगा हम उसे थाने ले जाएंगे। जी। और इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी के हवाले से गेट पे चेकिंग भी हो रही है? जी बिल्कुल, चेकिंग हो रही है। चेकिंग हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी होगी आपकी? ये 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक है। 4 से 11? जी।
जी बिल्कुल, आपने जाना कि डीपीओ लोधरा कैप्टन अली बिन तारिक की हिदायत पर इस वक्त एक हेड कांस्टेबल की निगरानी में 5 जी राना से बहुत शुक्रिया आपका। विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर शोबे फैशन आर्ट्स में थीसिस डिस्प्ले, फाइनल ईयर तालिबात ने फैशन आर्ट के फनपारे पेश किए। शुरका ने तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को खूब सराहा। वाइस चांसलर अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्कर डॉक्टर जाहिद हुसैन खंडरा और वाइस चांसलर वीमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाजिया अंजुम ने फनपारों का जायजा लिया। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शोबा फैशन आर्ट्स में थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद। फाइनल ईयर की तालिबात ने अपने तख्लीकी फनपारे पेश किए। मेहमानों और दीगर शुरका ने तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को खूब सराहा। वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाजिया अंजुम का कहना था कि तालिबात ने न सिर्फ फन में महारत का मुजाहिरा किया बल्कि उनके काम में जदीद आइडियाज और मार्केट के तकाजों का इम्तजाज भी नजर आया। एक बच्चियां जो कि बड़े हम्बल बैकग्राउंड से यहाँ पे आती हैं, पढ़ती हैं, और वो उनमें कितना टैलेंट है, यानी ये शो कर रहा है कि बच्चे किस तरह से क्रिएटिव हैं, क्रिटिकली थिंक करते हैं और अपने काम को किस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे, उनमें जो कॉन्फिडेंस आया है, यही बेसिकली एक चाहिए हमें। वाइस चांसलर अरोड़ यूनिवर्सिटी सखर डॉक्टर जाहिद हुसैन खंड का कहना था कि तालिबात का काम बेहद शानदार है। उनकी तख्लीकी सलाहियतें इस काबिल हैं कि उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराया जाए। उन्होंने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट को अरोड़ यूनिवर्सिटी के दौरे की दावत भी दी। हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी थॉट्स को किस तरह से ट्रांसलेट करके अपनी पेंटिंग्स में और यहाँ डिस्प्ले में दिया, तो यकीनन टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा आजकल के जो बच्चे हैं माशाल्लाह दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे थिंक डिफरेंट। प्रोफेसर डॉक्टर शाजी अंजुम का मजीद कहना था कि तालिबात अपने फन पारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए फरोख्त भी कर सकेंगी। फाइन आर्ट्स को मजीद फरोग देने के लिए यूनिवर्सिटी में एक मुस्तकिल सवेनियर शॉप भी कायम की जाएगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।